Okay, very good morning to all of you. And straight away, there is some query. Good morning messages from Aryan, Harshit, Rishabh, Parth. Rishabh has asked to please share the answer key of CPT. Well, I think I did share with some of you. Maybe I can just. We have done it in the group, I mean. Okay. I've done it in the group. Okay. So just check it once. Fine. So, like in the last session, we were discussing on. The other message. So, we were discussing on RLDC circuits. We'll just give a quick review of what we had already done, and then maybe we'll start from that point. So I think that would be good, isn't it? So we had done in the last class, if you remember. In the last class, we have done that if there is an inductor, and let's say if there is a current going in a certain direction, so according to Kirchhoff's law, we are going to use it as an equivalent cell in this direction. And with the EMF of so either you write it as minus L di dt if you are going in the direction of current, or you put a battery with reverse polarity and say that the magnitude of this is L di dt. Okay, and so on, or rather, this is of course assuming that there is an increasing current. Okay, but if there is a decreasing current, then it will become the other way around. That is, okay. So in case of increasing current and in case of decreasing current, there will be two different phenomena as has been indicated in this particular case. Okay, so that's more or less the introduction to this topic of how really an inductor behaves in a circuit. Now, probably what we will do is that we will now take up that thing in this particular circuit, and that is RL DC circuit. So it's a RL and DC circuit. RL DC circuit, but with a catch, and that is this will be called as a growth circuit. So why you might say, why growth circuit? Isn't it? Why will we call it as a growth circuit? Well, the reason is that if you look at the circuit, it is like this. So this is put on at. Now, had there been no resistor, please try to understand. Had there been no resistor, sorry, had there been no inductor, then the moment you put the switch on, the current would have become E by R, isn't it? So this is E, this is R, and this is F. But if that is the case, try to understand. If that is the case, then from 0, the current should grow suddenly to E by R. Now that's an infinite growth, which is not possible. So thereby, what will happen is that now, why is the infinite growth not possible? Or rather, I should not say infinite growth actually, infinite growth rate. Because from 0, it suddenly became E by R the moment you put the switch on. So what will happen? What will happen is that because of the presence of the inductor, it will not allow any sudden changes to happen. So there will be a reaction to the sudden change that is supposedly supposed to happen. So in the process, what will happen is that, there will be a reaction from the inductor. The cell will try to pass current. The inductor will try to oppose current.
The resistor will also try to oppose in its own way, and so on. So it's a mixed kind of a phenomenon that is happening, and very difficult to predict from physics point of view as to what its outcome will be. देखो प्योर फिजिक्स इसका आउटकम बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली करेंगे. मैथमेटिकली कैसे? Now let us say the current after some time is I. After some time is I. तो वही आई जाएगा पूरे इसमें, like I do a Kirchhoff's law. If I write a Kirchhoff's law equation, what will I get? First I pass through battery, so E. Then minus IR. And then minus LDID. And that will be equal to 0. I think that's pretty simple. So therefore, you are getting an outcome which is like pretty around expected lines. So I think there is nothing surprising in that. So you have L DIDT is equal to E minus IR. So from this we will get a differential equation. From this we will get a differential equation, and I can write it as Ti by E minus IR and as I said, the current is going to grow from 0 to I, as it is supposed to. 0 to I, time from 0 to T. So that's how the limits will be set, and therefore you will get what? Minus 1 upon R Ln so I can bring the R on this side, and you will have Ln E minus IR by E equal to minus R by L into T. Have a look. So therefore, on that note, we can easily find out the expression as to what the current is. So you will have E minus IR by E will be equal to E to the power minus of R by L into. Okay. Okay, we have already got some answers. Dave has given the answer as E by R into 1 minus E to the power minus R by L into T. I think that's correct. That's right. ठीक है ना? तो ये आ जाएगा equal. That means I is equal to if I look at the graph of this expression, from this end, okay, just have a look. At T is equal to 0, I is equal to what? Now, if I put T is equal to 0, E to the power 0 is 1, and 1 minus 1 is 0. So the current will be what? Equal to 0. Isn't it the fact? So therefore, at T is equal to 0, I is equal to 0. And at T is equal to infinity. Okay. So at T is equal to infinity, I is equal to what? If I put T is equal to infinity, then E to the minus infinity is what? 0. So 1 minus 0 is 1. And 1 into E by R is what? E by R. So the current will reach its highest value, which is E by R. That means as if the inductor is not even present. Try to understand. This is a moment where as if the inductor is not even present. That's what it turns out to be. So therefore,
the current becomes what now? Equal to E upon R. But at what time? Infinite time. And that's why we are calling it as a growth. So it is starting with the value of 0. It is starting with the value of 0. But it is slowly going to grow to a value of E by R. And that's what we are seeing. I hope that's okay. Just like capacitor, we define something called as a time constant even here also. I think you can understand what should be the time constant. The time constant in this case is equal to what? L by R. But this is R by L. So I can easily write it as T upon tau. So if I have to do that, then I have to write tau as equal to L upon R. So T is equal to tau is equal to L by R. What will happen? Now, if T is equal to tau is equal to L by R, so then T and this gets cancelled, so it becomes e to the minus 1. And e to the minus 1 is 1 upon 2.73 approximate 0.37. So this will be 1 minus 0.37, which is 0.63. So I add T is equal to tau is equal to L by R, which will be called as time constant. I at tau, okay. I at 0, I at infinity, and I at tau will be equal to 0.63 times. So that means the current will become 63%. Okay, so the current will become equal to 63% of its peak value. So in this case, we are seeing that this current will become 63% of its peak value. I hope that's understood. Okay, so now essentially, therefore, what is happening is that the current is going to grow from 0 and then go on increasing. To what value? Maximum equal to E by R. That's what we're going to see. So what happens is that this is how the current is going to grow. T and that's why it is being called as the growth circuit, because the current is slowly growing up to a maximum value of equal to E by R. And you know what? I can also write this tau is equal to T is equal to tau 63%. So that is this. So it is going to be 0.63 into E by R. Yeah, have a look. And that's what we are seeing. So the current is going to slowly grow, and at T is equal to tau, it will be 63% of its peak value. Okay, please have a look. And that's why it is being called as a growth circuit. Now let's do one thing. Let's do an analysis of that opposition part that we did in capacitor. In capacitor, we say that the initial current is equal to E by R and final current is 0. Now it was actually the other way around. In capacitor, initial current was E by R and the final current at T is equal to infinity was 0. Here it's the other way around. Here the initial current is 0, but the final current is E by R. So the behavior of a capacitor inductor for a DC circuit seems to be slightly opposite. But whatever it is, one thing is very clear. We have a fixed battery, we have a fixed resistor, yet we are having a variable current.
I will repeat. A fixed cell, a fixed voltage, and a fixed resistor, yet a variable current. So one way of expressing that, or one way of explaining that, is that let's assume that inductor is a variable resistor. So I'm now going to treat the inductor as some kind of a variable resistor. If I do that, then what I do is that let me write the current as, let me write the general expression of current as equal to E by resistor plus resistance of the inductor. What's that? And if I do that, what is I? I is equal to this one. E by R into 1 minus e to the power minus T upon tau. Tau here means obviously L by R, so like that is equal to this one. E by R plus Ri. So I can cancel out E and I bring this side to like R minus R into R e to the power minus T by tau plus minus Ri into e to the power minus T by tau is equal to R. एक टर्म छूट गया प्लस आर इज इक्वल टू आर तो आर गेट्स कैंसिल तो आर आई वाला टर्म मैं उधर ले जाता हूँ दैट केस क्या आ जाएगा आर आई या आर वाला टर्म उधर ले जाता हूँ तो आर आई इंटू 1 minus e to the power minus t by tau is equal to r into e to the power minus t by tau. ठीक है? And if I do that, then what happens? Therefore, R of the inductor is equal to R into e to the power minus t by tau 1 minus e to the power minus. So this could be somewhat written as some kind of a resistance of inductor. Have a look. This could be written as some kind of a resistance of inductor expression. So the inductor is acting as a variable resistor, varying with time according to this formula. Now, if that is the case, then what I do is that I take T is equal to 0. So if I take T is equal to 0, then this becomes e to the power 0 is 1. This also becomes e to the power 0 as 1. So R by 1 minus 1. And that becomes equal to infinity. Are you getting it? Yani, ye inductor at T is equal to 0 is behaving like an infinite resistor. Yani open circuit kind of. क्यों? क्योंकि ये सडन चेंज को अपोज करेंगे और हमारा जो सडन चेंज इस केस में प्रोस्पेक्टिवली होने वाला था वो था इनफाइनाइट फ्रॉम 0 इट वाज सपोज्ड टू गो टू सडनली e by r so infinite change in a very short time or rather a finite change in a very short time which is almost a infinite rate of change so infinite opposition no current builds up that can be interpreted as what infinite resistance of the inductor. That's one. Next, at t is equal to infinity, so at t is equal to infinity R of the inductor will be what? So I put t is equal to infinity. Okay, then this will become e to the minus infinity 0. This is also 0. So R into 0 by 1 minus 0. That is 0. Which means I can now draw another graph. This was the graph of current. Okay, so this was the graph of current, as you can see here. And now I'm going to draw the graph of the behavior of resistance of the inductor. So just look at the behavior. So the resistance is going to what? Ri versus T. Now, there are two possible behaviors.
One is, see, ultimately it's going to go to infinity. But infinity can also happen in two different ways. One is either like this or like this. Now, whether the answer is A or B. Can you now tell? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, डीआर वो करेंगे स्लोप, है ना? तो स्लोप का कैसे करेंगे ना, इसका स्लोप क्या होगा ना, माइनस आर तो नहीं है, तो हमें बेसिकली इसको डिफरेंशिएट करना है ना, ये हो जाएगा माइनस 1/टाउ इंटू माइनस e to the power minus t by tau into 1 minus e to the power minus t by tau माइनस इसको एज इट इज और इसको डिफरेंशिएट, तो इसमें क्या है ना कि आएगा तो -1/टाउ, लेकिन एक साथ में माइनस भी है तो ये प्लस हो जाए, यानी e to the power minus t by tau upon denominator whole square. So this will become, if you look at carefully, minus 1/tau e to the power minus 1/tau e to the power minus t by tau, ये पहला वाला टर्म, प्लस एक 1/tau किसमें दिया है, प्लस 1/tau e to the power minus 2t by tau, और ये हो जाएगा माइनस 1/tau into e to the power minus 2t by tau, है ना, अपॉन Aryan has asked a question, and that is t is equal to 0 पे r is equal to 0 कैसे? नहीं, t is equal to 0 पे तो r को इनफाइनाइट लिखा है ना, देखो ना, अगर t is equal to 0 पुट करूंगा तो e to the power t हो गया 0, e to the power 0 मतलब 1, और ये हो गया 1 minus e to the power 0 is 1, तो 1 minus 1 is 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो r upon 0 यानी इनफाइनाइट। ओ सॉरी मैंने एक्चुअली उल्टा बना मैंने गलत बना दिया, ठीक है, वो मैंने ग्राफ गलत ग्राफ गलत बनाया मैंने, ठीक है ना, तो ग्राफ होगा कि इनिशियली इंफिनिटी, है ना, और फिर उसके बाद फाइनली जो है ना रेजिस्टेंस 0 आ जाए, दैट्स हाउ द ग्राफ, ठीक है, मैंने ग्राफ ही गलत बनाया, मैंने गलती से 0 बनाया, लिखा इंफिनिटी और बना दिया, ठीक है, एग्री। एनीवे द स्लोप इज दिस, और ये हो जाएगा 1 minus e to the power minus t by tau का, so this gets cancelled, so finally the slope will become equal to minus of 1 by t into e to the power minus t by tau upon 1 minus e to the power minus t by tau का whole square, ठीक है, so this is how the graph will be, and the slope will be there, and therefore yeah, हाँ सक्षम, I also understood, वही सेम चीज हमने पॉइंट आउट किया अरियंत ने भी, कि आपने 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो तो गलती हुआ था, वो लिखा तो है इंफिनिटी और मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया 0 से, तो वो तो गलत ऑब्वियस। So the point I'm trying to drive home is that कि इस केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो रहा है एकदम स्टार्टिंग, और फाइनल में 0 रेजिस्टेंस, so the behavior is exactly flip side to that of a capacitor, कैपेसिटर में इसका exactly opposite behavior है या नहीं, चलो, so that is what we see in this particular question, and that is, वैसे अगर स्लोप एनालिसिस भी करना चाहते हो तो स्लोप का तो क्या नेगेटिव आएगा, which is obvious है ना, so that's how the graph will be,
And therefore, based on this, that's based on whatever we have discussed till now, we can now solve a question. And that is, देखो, अगर मैं इस बिहेवियर को स्टडी करूं कि भाई इनफाइनाइट में क्या होता है, जीरो पे क्या होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करूं. देखो, to start off with a very simple question, 6 ohm, 4 ohm, 30 volt, I1, I2. तो t is equal to 0 पे और t to infinity पे draw the graph. Please go ahead. Okay, we have almost got an instantaneous answer. ठीक है. Okay. ठीक है. एक्चुअली क्या होगा, देखो, t is equal to 0 पे ये देगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो इससे तो कुछ नहीं जाने वाला. तो करंट कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे. So the total resistance is what, 10 ohm, and therefore the current will be 3 ampere. So 3 ampere here, 3 ampere here, and 0. लेकिन इंफिनिटी टाइम बाद क्या हो जाएगा, इंफिनिटी टाइम बाद यही रेजिस्टेंस बस रह जाएगा, क्योंकि अब तो ये जीरो रेजिस्टेंस, तो therefore current will not pass through this. Therefore the current will now pass through this. So therefore it will become 5, 0 and 5. यानी यहाँ से अब कुछ नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस फाइनाइट वैल्यू है. एक्चुअली क्या ना, यहाँ पे दो रास्ते अवेलेबल हो गए. यहाँ से करंट आने के बाद एक 5 ओम वाला है, सॉरी एक 4 ओम वाला है, और एक 0 ओम वाला है. तो ऑब्वियसली अगर मान लो कहीं पे जीरो रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस फ्री पाथ मिल रहा है, तो करंट तो वहीं से जाएंगे, है ना. आई थिंक दैट्स बट ऑब्वियस. तो देयरफॉर ये आ जाएगा 5, 0 एंड 5. ठीक है, प्लीज चेक. अच्छा, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं एक और विंग दे देता हूं इसमें. और सपोज I4, तो वैल्यूज बदल देता हूं. नाउ व्हाट, मैं दे रहा हूं.
another set of answers have started coming up. Aryan ne de diye. And Shashi, everybody started giving, and I think they're all giving the right answer and quick prompt answer also. Jasraj ne bhi de diye. थोड़े थोड़े अलग आ रहा है, लेकिन इस बार थोड़े थोड़े अलग आ रहा है. चलो ठीक है. देखो पहली बात तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना. इसलिए इन दोनों से तो कुछ नहीं होगा, तो 3 + 2 5 ओम और 20 वोल्ट का बैटरी, तो 20/5 4. दैट मींस I1 is 4, I2 is 4, बट यहाँ पे 0 0. लेकिन बाद में क्या देखो, बाद में इसका 0 रेजिस्टेंस, तो देखो इसी से जाएंगे, इससे भी नहीं जाएंगे, इससे भी नहीं जाएंगे ना. यू माइट से ये भी तो 0 रेजिस्टेंस, लेकिन ये वाला 0 रेजिस्टेंस और 3 ओम मिला के टोटल 3 ओम रेजिस्टेंस है. यानी इंफिनिटी टाइम पे एक 2 ओम है, एक 0 ओम है और एक 3 ओम है. देखो इससे भी कुछ नहीं जाएंगे, इससे भी कुछ नहीं जाएंगे, सारा करंट अब यहां से जाएंगे और एक ही रेजिस्टेंस एक्टिव रहेगा और वो है 3 ओम. ठीक है ना. तो देयरफॉर इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएगा. इस बार ये हो जाएगा कि इससे कुछ नहीं जाएगा 0, इससे भी कुछ नहीं जाएगा 0, और रेजिस्टेंस 3 है और 20 वोल्ट का बैटरी है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 20/3. इस बार सेकंड वाले में कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, तो एक बार जरा वो ठीक कर. ओके, now there's an interesting question from Aryan. And that is कि अगर ये 3 ओम नहीं लगाया जाता, अगर सिर्फ ये 2 इंडक्टर होता तो क्या होता, है ना. आंसर इज दैट, उसका जवाब हम नहीं दे सकते. क्या करना पड़ेगा उसके लिए, और डेटा चाहिए. विदाउट डेटा नहीं हो सकता. ठीक है ना. कैसे ना, वो जो 2 इंडक्टर है ना, उनका डेटा चाहिए. ठीक है. तो यू माइट से ये किस तरीके का होता है ना, उसके लिए मैं एक चीज समझाऊंगा. इज दैट, अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा बदल रहा हूं. अब मैं थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इन सीरीज. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? सपोज मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस हटा दो. इंडक्टेंस का जो यूनिट है दैट इज हेनरी. ठीक है ना. इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो है हेनरी. तो लेट अस से एक है 5 हेनरी और एक है 3 हेनरी. तो इन दैट केस फाइनली कितने करंट जाएंगे एक एक. ठीक है. ये 5 हेनरी, ये 3 हेनरी, ये 2 ओम और 3 ओम और ये सब. अब क्वेश्चन दोबारा आ गया, और डेटा में चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इसको ऐसे ही रहने दो. तो आई एम आस्किंग दिस. देख लो. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द करंट्स. इस बार इंफिनिटी टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं. इसके सॉरी t इज इक्वल टू 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके इनफिनिट रेजिस्टेंस है. तो देखो जो भी जाएंगे यहां से. तो 3 और 2 5 हो गया और 20 ओम है, यानी 4 एम्पियर 0 एम्पियर. कहानी में ट्विस्ट अब इस बात पे है
कि जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे इसका भी जीरो रेजिस्टेंस है, इसका भी जीरो रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू तो करंट जाएगा नहीं, इन दोनों के थ्रू जाएंगे। लेकिन अब जब इन दोनों के थ्रू जाएंगे यानी डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। तो डिवीजन किस बेसिस पे होगा? तो नेचर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, नेचर हमेशा उस इक्विलिब्रियम कंडीशन है, देयर इज नो चेंज गोइंग टू हैपन आफ्टर इंफिनिटी टाइम। तो वो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें पता क्या होगा, वो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये नेचुरल चीज है दैट द टोटल एनर्जी इज मिनिमम, सो द करंट विल डिवाइड, current divides such that the energy is minimum। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूंगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाता है, डेटा को भूल जाता है। देखो ये तो मुझे मालूम है कि जीरो रेजिस्टेंस 3 ओम 20 वोल्ट, यानी यहाँ तो होगा 20/3, यहाँ 0, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन, हमें ये निकालना है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहता हूँ सो दैट वी कैन हैव अ मोर इफेक्टिव स्टडी हमें। और वो जनरलाइज कैसे करेंगे, देखो सपोज ये आई करंट और यहां से L1 है, now these two are inductors in parallel, these two inductors are in parallel। और देव तुमने जो आंसर दिया ना 15/2 और 25/2, उससे तो बेटे 15 एम्पीयर का करंट आ गया ना, लेकिन फाइनल जो करंट बनेगा वो तो 20/3 होगा, और वही 20/3 यहां तक जाके यहां तो कुछ नहीं आएगा 20/3 में से, 20/3 के डिवीजन होगा, वो तुमको निकालना है ना। सो दैट्स व्हाट हैज टू बी डन। अच्छा बाय 6 होगा, चलो कोई बात नहीं, वो तो अब समझ में आ गया, करेक्ट ही लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा ना, ये जो करंट है लेटर से इसमें से जा रहा है I1 या X जा, तो इससे क्या जाएगा I - X। अब दोनों में एनर्जी स्टोर होगा, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ L1 X² प्लस हाफ L2 I - X का होल स्क्वायर। देखो अच्छे से, हाफ L2 I - X का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा सो दैट द टोटल एनर्जी इज मिनिमम, तो यानी du dx निकाल इज इक्वल टू L1x ट्वाइस आएगा लेकिन, प्लस L2 I - X इंटू -1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0, यानी L1x प्लस L2x शुड बी इक्वल टू L2I, यानी the current X should be equal to L2 by L1 plus L2 into I। I think अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, यानी जो I1 करंट जा रहा है, यानी जो I1 वाले में करंट जा रहा है, यानी जो L1 वाले में जो करंट जा रहा है, जिसको मैं I1 या X लिख सकता हूं, ठीक है ना, वो कितना आ गया ना L2, यानी L1 में जो करंट जा रहा है वो देखो L2 by L1 plus L2 into I आ रहा है। दिस इज वेरी सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर में भी याद करके देखो, अगर I करंट आता है और अगर R1 और R2 होता है, दो पैरेलल रेजिस्टर, तो R1 में कितना करंट जाता है ना, R2 by R1 plus R2 into I, और R2 में कितना करंट जाता है, R1 by R1 plus R2 into I। Exactly, almost carbon copy expression has come out to be here also। यानी करंट का जब डिवीजन होगा तो X ही आ गया, तो I - X कितना आ जाएगा, I equal to L1 by L1 plus L2 into I। यानी बेसिकली ये हो गया कि अगर मान लो I करंट आता है और दो पैरेलल L1 और L2 में डिवाइड होता है, तो I1 होगा L2 by L1 plus L2 into I, and I2 will be L1 by L1 plus L2। That's it। अब इस केस में क्या हो जाएगा फिर, है ना,
तो इस केस में ये हो जाएगा कि जो इसके थ्रू जाएगा वो होगा 3/8 इंटू 20/3 इसके ये वाला यानी 3/8 इंटू 20/3 वो थोड़ा बहुत कैंसिल होगा, वो अपने आप कर लेना। और ये कितना इसके थ्रू कितना होगा 5/8 इंटू 20/3 that's the particular case. I hope you are getting it. I hope that's okay. ठीक है ना? तो ये हो गया इसका डिवीजन का तरीका। और ये अब डिवीजन आ गया तो यानी ये तो वो कैंसिल हो जाएगा 6 तो 5 15/6 तो यानी 2/3 15/6 यानी 5/2 और ये हो जाएगा। मतलब मैं 6 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट्स बेटर। तो 15/6 एंड 25/6 ये वाला। अब ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा बट वो 6 रखना चाह रहा था इसलिए मैंने कर दिया। This can be simplified, of course. We can divide by 3 and write it as 5/2. Okay, so that would be more or less the discussion on how current gets divided in case, let's say, there are 2 or even more inductors. है ना? वो भी एक चीज, ठीक है? तो एक्चुअली इसका डिवीजन इस तरीके से होगा। Even if there are more also, you can also still divide. यानी ये बेसिकली रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसे बिहेव करना, इसी तरीके से बिहेव करना, ठीक है ना? चलो, so that was about your division of current, and what we were talking about was growth circuit. Okay, so what we were talking about was growth circuit. Now we are going to talk about what is called as a decay circuit. अब decay circuit क्या है वो देखो decay circuit कुछ इस तरीके का है। Let's say we have a circuit और इस बार स्विच थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्विच कैसा है देखो, now there's a multiple kind of a switch, like you can activate the battery also if we put it like this. So this one can be put here. This knob that you are seeing can be put here also and can be put here also. So therefore this one you can activate as well or deactivate also. यानी इस सेल को मैं एक्टिवेटेड भी रख सकता हूँ, डीएक्टिवेटेड भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ऑब्वियसली द सेल इज एक्टिव, है ना? लेकिन अगर इसी को मैं इधर कर देता हूं तो नाउ द सेल इज नो मोर एक्टिव, है ना? देख लो तो कैसे होगा। तो मैं एक काम करता हूं, शुरू में तो ऐसे ही रखता हूं। अगर शुरू में ऐसे रखूंगा, isn't it a growth circuit? है बोलो, है ना? Isn't it a growth circuit? है बोलो। अब ये ग्रोथ सर्किट चलने दो, चलने दो। इस ग्रोथ सर्किट को जो है ना
चलने दो। और उसके बाद एक काम करो, सडनली क्या करो, इसको यहां पे लेके आओ। इसको सडनली यहां पे लेकर, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, बैटरी इज आउट ऑफ द सर्किट। अगर ये इंडक्टर नहीं होता, तो पता क्या होता, जो करंट चल रहा है, लेट्स से व्हाटएवर करंट वाज गोइंग, अगर इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, तो करंट वुड ड्रॉप डाउन टू जीरो। यानी अगर मान लो ये सर्किट सिर्फ, अगर ये सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस और सेल होता, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, the current would have suddenly dropped down to zero. ये देखो, the current would have suddenly dropped down to zero. This is what exactly would have happened. है ना? क्यों? क्योंकि मैंने सर्किट को यहां कर दिया, तो बैटरी तो सर्किट का पार्ट नहीं है, ड्राइवर नहीं है कोई करंट का। तो अगर मान लो इंडक्टर नहीं होता और अगर उसके पहले का करंट ऐसे हुआ होता, तो द करंट वुड हैव सडनली ड्रॉप डाउन टू जीरो। यानी फिर से डीआईडीटी इंफिनिटी हो गया, या कह सकते हो माइनस इंफिनिटी, क्योंकि सडनली करंट ड्रॉप कर गया। देखो डीआईडीटी इंफिनिटी प्लस में हो या माइनस में हो, इसको तो जबरदस्त अपोजिशन, यानी डीआईडीटी माइनस इंफिनिटी होने नहीं देंगे। तो यानी अगर मान लो तुम इस सर्किट को यहां से एकदम से यहां कर दो, तो कायदे से करंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए था, बट ये जीरो होने नहीं देंगे। ठीक है, ये जीरो होने नहीं देंगे। तो क्या होगा, लेट्स स्टडी। तो देयरफॉर लेट अस से इसके थोड़ी देर बाद इसका इनिशियल करंट मान लो आई नो, तो आई नॉट किस वक्त करंट, जिस समय मैंने स्विच को यहां से यहां किया, लेट अस से उस समय सर्किट में आई नॉट करंट जा। अब यहां कर दिया तो सेल तो आउट ऑफ द सर्किट हो गया, अब तो सेल इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द सर्किट, लेकिन करंट एकदम से ड्रॉप नहीं करेगा, करंट कुछ होगा, मतलब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इतना जल्दी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद मान लो करंट आई, तो अगेन लेट्स राइट डाउन पिक्चर्स, क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई डी टी, है ना, माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, है ना, माइनस एल डी आई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। आ गया, तो ये हो जाएगा डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बाई एल, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज एल एन आई टाइम कांस्टेंट टाउ तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है एल बाई आर, तो आई एम यूजिंग दैट एल बाई आर। तो क्या हो गया फिर, ओके, e to the power माइनस, यानी I is equal to that is how it will be. So what will be the graph? So at t is equal to 0, I is equal to I naught. At t is equal to infinity, I is equal to 0. t is equal to infinity put करें तो क्या होगा, I is equal to 0 आएगा obviously, है ना, और t is equal to tau
sorry, 0.37. Something that we have already studied in case of a capacitor. नया चीज नहीं है ना. So something that we already studied in a capacitor, it is very similar to that, है ना. देख लो. तो ग्राफ क्या हो जाएगा फिर I नॉट और यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट है that will become equal to 37% of the peak current. है ना. 37% of the peak current. तो यानी देख रहे हो कितना सिमिलैरिटी है कैपेसिटर के वो सर्किट जो हमने किए थे आरसी सर्किट डीसी और आरएलडीसी सर्किट. So we are seeing a lot of parallels and similarity. But one last thing is also interesting, and that is, एक काम करो, ये जो करंट डिक्रीज किया, ये जो करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका वेरिएबल का वैल्यू तो आ गया, वेरिएबल करंट I is equal to I naught into e to the minus t by tau. Now this current is going to go on for infinite time. और करंट रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, यानी हीट डिसिपेशन भी होगा, हीट भी इवॉल्व होगा. I think that is expected lines, that is on expected lines. I think that is nothing surprising, है ना. तो एक काम करो, what you do is that now find out the total heat liberated from. तो कैसे निकालोगे ना. पावर तो आई स्क्वायर आर है और dt यानी आई स्क्वायर आर dt इंटीग्रेशन 0 to infinity. ठीक है, चलो गो अहेड. दिस इज द करंट बाय द वे. और करंट का जो प्रोफाइल है वो देखो ऐसे हो रहा है, डिक्रीज. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है ना, और पिछले बार देखा होगा करंट बढ़ रहा था, तो लास्ट टाइम वी वर कॉलिंग इट एज अ ग्रोथ सर्किट. ठीक है ना. और इस बार जो सर्किट है ना, इस बार का जो सर्किट है इसका हम लोग नाम दे देंगे एज अ डीके सर्किट. ओके, सो दिस वन will be now called as a डीके सर्किट. ये करंट डिक्रीज करता जा रहा है, तो टेक्निकली उन्होंने डीके नाम दिया, डिक्रीज सर्किट भी कह सकते. So it doesn't matter, है ना. So therefore the total heat liberated from the resistor will now be equal to I square R dt का इंटीग्रेशन. अब ये टोटल हीट निकाल, देखो जरा कितना आ रहा है. Just find out how much is the heat. Quickly find out. Okay, Arihant has already given the answer, and that is I square L by 2, so I naught square, है ना, I naught square. ठीक है. So what we will do is that we will just integrate and get the expression. So I square R, तो I तो यही है, यानी I naught into e to the power minus of t by tau a square. तो I naught square R तो वो हो जाएगा, है ना. We can bring it out. और ये हो जाएगा e to the power minus of
अब इसका अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आ जाएगा, बाई याद है जसराज एक टी किस लिए आ रहा है, टी नहीं आएगा ना जसराज, इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हो गया बाई टाउ, यानी ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू टाउ इंटू, अगर मैं इसमें इंफिनिटी पुट कर दूं e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या आएगा, 0 माइनस, अगर टी के जगह 0 पुट कर दो तो e टू द पावर माइनस 0 क्या होगा, 0, यानी e टू द पावर 0 यानी 1, तो -1 और -1 खत्म हो जाए, और टाउ क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टाउ, टाउ क्या है, एल बाई आर, अच्छा वो टी नहीं टाउ है, ठीक है समझ गया, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सिंपलीफाई कर दो ठीक हो जाएगा, देखो आर कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब देखो हमने जब इंडक्शन करा और उसके बाद हमने उसके ऊपर वो भी किया था क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस एनालिसिस, हमें तो हमने देखा था कि जो एनर्जी स्टोर होता है इन इंडक्टर दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो जिस समय हमने स्विच को एक तरफ से दूसरे तरफ किया, यहां से यहां किया, उस समय करंट आई नॉट था, आई नॉट वाज द इनिशियल करंट, नाउ दैट मींस द इंडक्टर वाज कैरिंग सम एनर्जी, कौन सा एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इट वाज स्टोरिंग इन द इंडक्टर, कितना, हाफ एल आई स्क्वायर, यानी उस समय इनिशियली हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और उसके बाद इस सर्किट का जो करंट है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हैज बीन ड्रिवन बाय द इंडक्टर, यानी इस केस में इंडक्टर ही करंट को ड्राइव कर रहा था, तो दिस टाइम द इंडक्टर वाज एक्चुअली बिहेविंग लाइक दैट ऑफ अ सेल, ठीक है ना, सो द इंडक्टर वाज बिहेविंग लाइक दैट ऑफ अ सेल, और पता है इसका यूज जबरदस्त है, एक चीज बताओ, यू नो व्हाट, मैं तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस बताता हूं, कंप्यूटर्स में मैं ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ काफी साल पहले का, मतलब 15 इयर्स पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या शायद उससे भी पुराना, ठीक है ना, मे बी अराउंड लेट्स से 20 इयर्स, उस समय जो कंप्यूटर्स होता था उसमें क्या होता, जैसे पावर ऑफ होता था ना, सो द कंप्यूटर विल गो ऑफ एंड वॉट एवर डेटा, वो स्टोरेज उस समय जो भी था वो गायब हो जाता था, इसलिए हमें ना बार बार हर 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद सेव करना पड़ता था फाइल्स, और फाइल सेविंग इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, ऐसे भी नहीं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कंट्रोल एस कर दो तो सेव हो जाएगा, सेव तो हो जाता है, लेकिन कई बार अगर बड़ा फाइल है ना तो कंट्रोल एस करोगे तो देखना कंप्यूटर फिर टाइम लगाएगा, 2 4 10 सेकंड लगाएगा, फिर कुछ साउंड साइकिल होगा, फिर वो सेव होगा एंड सो ऑन। अब अगर मान लो इस बीच में करंट अगर सडनली ऑफ हो जाए तो वो सारा जो लास्ट सेव्ड था वही रह जाएगा, इसके बीच में तुमने जो काम किया वो गायब, क्यों, क्या तुम बोलोगे क्या पहले वो पावर सप्लाई वो नहीं था, था, लेकिन पता है क्या ना, एक डिले होता था कि जैसे ही पावर सप्लाई खत्म होगा मेन सप्लाई से लेके हमारा जो इन्वर्टर एक्टिवेट होगा उसमें टाइम लगता था, और इतने देर में कंप्यूटर में सारा गड़बड़ जाता। अब पता है क्या किया जाता है, इंडक्टर यूज किया जाता है, so that what happens is that when your power supply is gone, immediately at that instant the current does not go up, current drops obviously, current will drops obviously, but will current take some time, इतने देर में इन्वर्टर अपना सप्लाई स्टार्ट करता है, तो जो गैप है with power supply going away and inverter getting activated, इसके बीच का जो गैप है वो इंडक्टर से हम लोग जो है आजकल वो कर देते हैं, यानी टेक्नोलॉजी बदल गया है, इसलिए देखो आजकल क्या होता है कंप्यूटर में ऑन ऑफ होता रहता है सर्किट, मतलब घर के सप्लाई ऑन ऑफ होता रहता है, लेकिन तुमको पता भी नहीं चलता, वो पता भी नहीं चलता कंप्यूटर के मामले में, क्यों, क्योंकि वो बीच में ऐसे नहीं कि डेटा गायब हो गया और तुम्हारा लास्ट के आधा घंटे का काम खत्म हो गया या बर्बाद हो गया, ऐसे कुछ, क्यों, क्योंकि इंडक्टर से क्या होता है भरपाई कर देता है, करंट खत्म नहीं होता है, तो इन द मीनवाइल वो जो भी ट्रांजिशन का टाइम लगता है ना,
दैट इज नो मोर अ प्रॉब्लम। बट 15-20 साल पहले एक प्रॉब्लम था और हम लोगों को हमेशा जो है बार बार सेव करना। अब तो खैर टेक्नोलॉजी काफी कुछ बदल चुका है, अब तो खैर कंप्यूटर ही लोग कम यूज करते है ना। लोग लैपटॉप की तरफ जा चुके हैं और उसके बाद लैपटॉप भी कम यूज कर रहे हैं, टैब की तरफ जा चुके हैं। अब टैब भी छोटा हो गया, अब मोबाइल में ही सब कुछ हो रहा है। तो जमाना बदल रहा है ना, जमाना बदल रहा है। बट चलो व्हाटएवर, ईच ईरा हैज इट्स ओन नुएंसेस। तो उस हिसाब से अगर चलोगे तो लाइक इट्स इंटरेस्टिंग फीचर ऑब्वियसली, है ना। चलो ओके, लेट्स मूव ऑन। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो इंडक्टर ने सेव किया था या उस समय इंडक्टर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी था हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द रेजिस्टर ओवर अ पीरियड ऑफ इनफाइनाइट टाइम। आई स्क्वायर आर डी टी करके इंटीग्रेशन करके यही रिजल्ट कंफर्म है ना। चलो नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे इंडक्टर है और सपोज सीरीज में, एक चीज जरा देखो, मैंने एक इंडक्टर यहां बनाया और एक इंडक्टर यहां बनाया, सो दे आर एज्यूम्ड टू बी फार अवे। ये फार अवे की क्या जरूरत है? फार अवे की क्या जरूरत है? फार अवे की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर तुम मान लो दो इंडक्टर को पास में रखोगे ना, इन दैट केस पता क्या होगा, एक का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरे में भी एंटर करेगा और दूसरे का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी फर्स्ट वाले को इन्फ्लुएंस करेंगे। So then it won't remain a pure self-inductance case. It will also become a mutual inductance case as well. ठीक है ना, अगर ऐसे हुआ तो मैं उस म्यूचुअल इंडक्टेंस को फिलहाल अवॉइड कर। So therefore what I do is that I keep them very far away so that इसका फ्लक्स वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और उसका फ्लक्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं। अगर पास में रखोगे, in that case you have to introduce or add another feature to it and that is mutual inductance। ठीक है, so I want to right now avoid। तो इस केस में अगर देख रहे हो, in that case let's say करंट आई है, सपोज करंट आई है, तो अगर करंट आई है तो करंट का शायद कुछ रेट ऑफ चेंज भी होगा, तो है ना। और सपोज मैं कहता हूं इन दोनों को हटाओ और इसको हटा के एक सिंगल एल इक्विवेलेंट कर, क्या दो दो लगा रखे, छोड़ो, एल इक्विवेलेंट करके एक सिंगल लगा, तो कितना लगाना चाहिए? तो अगर मैं यहां से ट्रैवल करता हूं यहां तक ए और बी, तो क्या हो जाएगा, वी ए, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो माइनस एल वन इंटू डी आई डी। अच्छा, अगर एक ही तार में हो तो इन दैट केस उसका करंट भी सेम होगा और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी अगर है तो वो भी सेम हो ऑब्वियसली, क्योंकि पूरे तार में तो एक ही करंट जाता है ना। तो वी ए माइनस एल वन डी आई डी टी माइनस एल टू डी आई डी टी इज इक्वल टू वी ए बी, वी बी मतलब, यानी मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल वन प्लस एल। और सपोज मैं कहता हूं क्या दो दो लगा रखा है, हटाओ इसको, हटा के एक सिंगल रखो, नो प्रॉब्लम। तो सिंगल रखने का मतलब क्या हुआ? सिंगल रखने का मतलब ये हुआ कि ऐसे एक इंडक्टर ढूंढो सो दैट यही करंट अगर उसमें भी पास हो, यही करंट, और अगर यही रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी हो उसमें, तो इन दैट केस इसमें भी वही करंट और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर हम करंट रखें, इन दैट केस ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज जितना इस वाले में हो रहा है उतना ही इस वाले में भी होना चाहिए। दैट्स द सिंपल असेसमेंट। भाई इक्विवेलेंट मतलब थोड़ी कि दो इंडक्टर का हटाया कुछ भी रख दिया, वो तो नहीं है ना, एक सर्टेन पैरिटी रखना पड़ेगा, तो वही मैं रख। तो इसके लिए क्या लिखूं फिर मैं? इसके लिए लिखूंगा मैं, तो ये तो हो गया इसके लिए क्या होता है, वी ए माइनस एल इक्विवेलेंट डी आई डी टी शुड बी इक्वल टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई डी।
अब कंपेयर करो है ना, यानी कंपेयरिंग क्या मिल रहा है, L equivalent is equal to देखो, ठीक है, तो L equivalent कितना हो गया ना, L1 प्लस L2, यानी अगर मान लो इंडक्टर्स इन सीरीज होता है और काफी दूर रहता है, फार ऑफ होना भी जरूरी है, लेकिन ध्यान रखो नहीं तो म्यूचुअल आएगा तो क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट थिंग इज एज ऑफ नाउ मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को अवॉइड कर रहा हूं, तो वी आर एज्यूमिंग नो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसलिए क्या होगा, हमने क्या किया, फार अवे रखा, दे आर केप्ट वेरी फार, तो अगर ऐसे करोगे इन दैट केस हो जाएगा जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, है ना, यानी इंडक्टर्स इन सीरीज इज बिहेविंग सिमिलर टू इंडक्टर्स सॉरी रेजिस्टर्स इन सीरीज, सिमिलर इन द सेंस कि रेजिस्टेंस में भी ऐड होता था सीरीज में, और इंडक्टर में भी मैं देख रहा हूँ सीरीज में ऐड ही होता, और ये लॉजिक अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो अगर फार 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 करके L1 L2 L3 L4 भी लगाओगे तो आई थिंक लॉजिक द सेम, यानी L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 plus L2 plus L3 plus L4 एंड सो ऑन, बट वो लॉजिक ध्यान रखना फार अवे होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इन योर माइंड इट मस्ट बी वर्किंग कि फार नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी करेंगे, बट दैट विल बी द एजेंडा ऑफ डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन, तो लाइक मंडे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो फार नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस ये तो सीरीज वाला केस है, इसके अलावा पैरेलल वाला में भी वही होता है कि अगर फार नहीं हुआ नियर बाई हुआ तो इन दैट केस क्या होगा, ठीक है ना, चलो आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, वी विल बी कैरिंग ऑन इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन मंडे, ठीक है, चलो टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड गुड बाय, एंजॉय द वीकेंड एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू मेक योर वीकली असेसमेंट चार्ट, मैं इसका बार-बार रिमाइंडर दे रहा हूं, और मैं डेफिनेटली मैं एश्योर कर सकता हूं कि वो वीकली चार्ट अगर तुम बना रहे हो, यू विल बी गेनिंग, ऑब्वियसली नॉट मी बट यू विल बी गेनिंग, तो प्लीज वो वीकली चार्ट बनाओ, कुछ लोग बनाए थे और मुझे भेजे भी, वो अलग बात है कि बहुत कम नंबर्स थे, बट चलो ठीक है, लेट द मोमेंटम बिल्ड अप स्लोली, तो वो वीकली चार्ट बनाओ, मुझे सेंड करो, और पिछले वीक के जो भी चार्ट बनाए थे कुछ लोगों ने, उसके साथ कंपेयर करके अब देखो कि इस वीक तुमने क्या अचीवमेंट किया है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, डोंट वरी ऑन दैट, हो सकता है तीनों सब्जेक्ट में कम हो, ये भी हो सकता है, बट चलो कोई बात नहीं, एक मेंटल मैप बनता है कि अच्छा इसके मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, या अगर करना है तो इन दैट केस क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी करना पड़ेगा, लेट योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग, you will become responsible for your own success and your preparation, that's the objective, ठीक है, चलो with that hope that now this time if not many more but at least a few more will definitely be a part of it and send me this thing on Sunday, fine, chalo, okay, have a good day, bye bye, thank you.